So dear student, let's read the practical example of capital reduction. This is our fifth practical example. So what we have done till today is theory base of this chapter as well as practical examples. As we have discussed in the previous session that first we'll do the basic examples and then we'll change the level of examples little bit hard. So let's read the practical example. Following is the balance sheet of Tara Company Limited as on 31st March 2020. So we are given one balance sheet. On the liabilities side, that is sources of fund, we have share capital, 2000 equity shares of rupees 100 each, that is 2 lakh. 1000 10% preference shares of rupees 100 each, 1 lakh. Along with that we have reserves and surplus, we have secured loans and long-term liabilities, in that we have 15% debentures and current liabilities and provisions, that is 10% bank loan, creditors and outstanding debenture interest. So this is liability side of balance sheet. Application of fund, it means the asset side. In application of fund, we have fixed asset. In fixed asset, we have goodwill, patents, land and building. See here, market value is given in bracket. Machinery also market value is given. तो ये जो market value दे के रखा है उसका हमें करना क्या है वो हम adjustment में देखेंगे. Investment 0 and current assets, loans and advances. In that we have stock, debtors, बैंक बैलेंस एंड एट द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस. अब देखो यहां पे जो डेटर्स है उसमें ग्रॉस डेटर्स है 80,000. आउट ऑफ दैट 4,000 बैड डेट रिजर्व इज डिडक्टेड. सो आउटर कॉलम वी हैव 76,000. क्लियर डियर स्टूडेंट? सो दिस इज अ बैलेंस शीट. सोर्सेस ऑफ फंड मींस लायबिलिटीज, एप्लीकेशन ऑफ फंड मींस assets. Moving further, the company has passed the following scheme of capital reduction approved by the court. Now we are given some adjustments of capital reduction. Number 1, the value of equity shares to be reduced by rupees 90 per share. अब देखो यहाँ पे क्या देके रखा है, जो इक्विटी शेयर्स है उसमें रिडक्शन कितना करना है, 90 रुपए का रिडक्शन करना है. Preference shares are converted into non-cumulative and to be reduced the value up to rupees 20 per share. अब दोनों जो एडजस्टमेंट है उसमें डिफरेंस क्या है, जो इक्विटी शेयर्स है उसमें 90 रुपए का रिडक्शन करना है और प्रेफरेंस शेयर को 20 रुपए तक रिड्यूस करना है. तो 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स अगर हम 20 रुपए तक लेके आएंगे तो उसमें हमें रिडक्शन कितना करना पड़ेगा, सो दैट इज 80 rupees in the reduction of preference shares. Moving further, debenture holders waive their unpaid interest. So outstanding interest, clear, that is capital reduction amount. Moving further, interest on bank loan for 6 months is paid in cash and bank loan is to be paid by giving equity shares of rupees 10 each. ये कुछ नया एडजस्टमेंट है जो पिछले एग्जांपल्स में नहीं था. क्या देके रखा है हमें, बैंक लोन कुछ देके रखा है और उसका 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो पे करना है कैश में, और बैंक लोन का भी पेमेंट कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं, बाय इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. मूविंग फर्दर, क्रेडिटर्स वेव्ड देयर 40% ड्यूज. अब क्रेडिटर्स जो है वो अपना 40% है वो फॉरगॉन कर रहे हैं, तो वो कैपिटल रिडक्शन अमाउंट हो जाएगा. Number 6, the dividend on preference shares was in arrears for last 2 years, for which against every rupees 100 dividend
1 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज इशूड। अभी ये जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 6, ये हमने पहले भी किया हुआ है। कुछ प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है वो पिछले 2 साल से दिया हुआ नहीं है, और 100 रुपए डिविडेंड के सामने हम 10 रुपए वाला एक शेयर्स दे रहे हैं। तो यहां पे हमको क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढेंगे। ठीक है, मूविंग फर्दर, ऑल इंटेंजिबल एसेट्स एंड लॉसेस आर रिटन ऑफ। जो भी इंटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल होगा, पेटेंट्स होगा, जो भी है उसको हमें राइट ऑफ करना है। अदर एसेट्स शुड बी शोन इन द बुक्स एट देयर मार्केट वैल्यू। अभी देखो मार्केट वैल्यू जो देके रखी थी हमें, लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी की ब्रैकेट में देके रखा था, वो जब नई बैलेंस शीट, हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे, तब हमें क्या लेना है, वो मार्केट वैल्यू लेना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट न्यू वैल्यू वी कैन फाइंड आउट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रियल एसेट्स। क्लियर? मूविंग फर्दर, one debtor of ₹5,000 became insolvent and nothing was recovered from him. Provide 10% bad debt reserve on debtors. अभी देखो यहां पे क्या है, एक डेटर है जो 5,000 है, वो इंसॉल्वेंट, उनके पास से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, और along with that we have to create 10% bad debt reserve on debtors. Clear? From the information above, so from the information, balance sheet and adjustments, pass necessary journal entries and prepare revised balance sheet after implementing the scheme of capital reduction. देखो अभी हमें करना क्या है, ये जो एडजस्टमेंट है इसमें से सभी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं एक्सेप्ट एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड नंबर 8। जो चौथे नंबर का एडजस्टमेंट है और 8वें नंबर का एडजस्टमेंट, इसके अलावा सभी एडजस्टमेंट हमने आगे वाले एग्जांपल्स में किए हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज प्रैक्टिकल एग्जांपल। नाउ व्हाट वी हैव डन इन प्रीवियस सेशंस, हमने क्या याद रखना है, जब भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल कैपिटल रिडक्शन का, तो हमें हमारे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो विच आर द स्टेप्स? स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट कैपिटल रिडक्शन अमाउंट। नंबर 2, कैलकुलेट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिडक्शन अमाउंट। नंबर 3, फाइंड आउट डिफरेंस। अब ये डिफरेंस कौन सा है वो हम पहले भी कर चुके हैं, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 का जो डिफरेंस है, और वो डिफरेंस हमें कहां पे ट्रांसफर करना है, दैट इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आफ्टर ट्रांसफरिंग अमाउंट टू द कैपिटल रिजर्व वी हैव टू पास necessary journal entries in the books of company. So after journal entries we have to prepare capital reduction account and we have to find out closing cash balance. अभी यहां पे आप कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, अदरवाइज यू कैन सिंपली प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश एंड बैंक। जो भी ओपनिंग बैलेंस है उसमें से पेमेंट डिडक्ट कर दो, जो भी रिसिप्ट है वो ऐड कर दो, तो जो लास्ट में मिलेगा वो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा। तो आप ये जो 6th नंबर का स्टेप है उसके लिए आप अकाउंट भी बना सकते हो और स्टेटमेंट भी बना सकते हो, पर हमें करना क्या है, क्लोजिंग कैश बैलेंस ढूंढना है। एंड द लास्ट स्टेप इज प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। क्लियर? और जो बैलेंस शीट बनाएंगे हमें उसके साथ में लिखना ही है एंड रिड्यूस्ड, या फिर नीचे ब्रैकेट में लिखना है आफ्टर द स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन। क्लियर डियर स्टूडेंट? सो दिस इज प्रैक्टिकल एग्जांपल। क्या देके रखा है, एक कंपनी है, उसकी हमें बैलेंस शीट देके रखी है, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एडजस्टमेंट विथ स्टेप्स वी हैव टू सॉल्व दिस प्रैक्टिकल एग्जांपल, and we are asked to prepare revised balance sheet after implementing the capital reduction scheme. Clear? So let's start the solution of this practical example. अब देखो इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या देके रखा है, look at the example one more time. So I divided the board in 4 parts. This is for calculation of capital reduction and utilization and transfer the amount to capital reserve as we have done in the previous sessions. Clear? This is for some calculation. Now in this example we are given some adjustment. 1 or 2 adjustments are there which were new. Look at here. The value of equity shares to be reduced by ₹90 per share. अबे इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यू है हमें कितनी देके रखी है, इक्विटी शेयर्स ₹100 के हैं,
How many equity shares are there? 2000 shares. So there is a reduction. So our first step is calculate capital reduction. So here capital reduction. In capital reduction, the first adjustment is the value of equity shares to be reduced by rupees 90%. 90 रुपए घटा है, तो यहां पे आएगा हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल. How much? 2000 multiplied with 90. That comes to 1,80,000. Clear? Moving further, preference shares are converted into non-cumulative and to be reduced the value up to rupees 20%. अबे 20 रुपए तक घटाना है प्रेफरेंस शेयर्स को. तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 1000 प्रेफरेंस शेयर्स. रिडक्शन कितना रुपए होगा? 80 रुपए. सो हियर preference share capital 1000 shares of rupees 80, that comes to 80,000. Clear? Moving further, the third adjustment, debenture holders waive their unpaid interest. अबे unpaid interest जो है debenture holders का हमें कितना देके रखा है? That is of 15,000. So if debenture holders are waiving their outstanding interest, so that is a capital reduction. ये हमने पहले भी कर चुके हैं. So here outstanding debenture interest amounted to rupees 15,000. So this is adjustment number 3. Clear? हम क्या कर रहे हैं? हम एडजस्टमेंट को फिर से एक बार पढ़ रहे हैं. एडजस्टमेंट को पढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ साथ हम उसके इफेक्ट देते जा रहे हैं. अगर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, देखो आगे. एडजस्टमेंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर 6 months इज पेड इन कैश एंड बैंक लोन इज टू बी पेड बाय गिविंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. अभी ये जो है एडजस्टमेंट हमारे पास नया एडजस्टमेंट है. बैंक लोन है. बैंक लोन कितना है हमारे पास? बैंक लोन इज अमाउंटेड टू ₹50,000. तो उस पे 6 महीने का इंटरेस्ट हम दे रहे हैं. तो यहां पे हम उसका कैलकुलेशन करेंगे. सो लुक एट हियर calculation. First is for bank loan. बैंक लोन के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं. तो बैंक लोन का अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या कैलकुलेशन करना है? इंटरेस्ट. सो ऑन 50,000 that is how many percentage? It is 10% for 6 months. 6 divided by 12. So here we have rupees 2,500. This is paid in cash. This is the amount of interest paid in cash. ये जो है ये क्या है हमारे पास? डिबेंचर इंटरेस्ट है जो हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं. अगर कैश से पेमेंट करेंगे तो उसकी कोई भी इफेक्ट हमारी कैपिटल रिडक्शन या फिर यूटिलाइजेशन में आने वाली नहीं है. सिर्फ जो कैश बैलेंस होगा वो उतना रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एंड बैंक लोन इज टू बी पेड बाय गिविंग इक्विटी शेयर्स. अबे बैंक लोन हमारी कितनी है? इक्विटी शेयर्स इश्यूड फॉर लोन. फॉर बैंक लोन. बैंक लोन के लिए हम क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स. अभी इक्विटी शेयर्स जो पहले 100 रुपए के थे अब कितने के हैं? 90 रुपए रिड्यूस कर दिए तो 10 रुपए है. तो 10 रुपए वाले शेयर्स हम दे रहे हैं. कितने शेयर्स देंगे? सो for that we will give them 5,000 equity shares of ₹10 each. देखो हम क्या कर रहे हैं? जो 50,000 लोन अमाउंट है उसके बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं. ठीक है, तो लोन का अमाउंट कितना है? 50,000 और हमारे एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज. सो 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each. So this is what the adjustment number 4. करना क्या है हमें? सिर्फ ये जो अमाउंट है वो कैश और बैंक से डिडक्ट करना है. क्लियर? और उसकी इफेक्ट सिर्फ यहां पे आएगी पर वो यूटिलाइजेशन में आएगी. कुछ लायबिलिटी थी नहीं, अब हम पे कर रहे हैं मतलब कुछ दे रहे. It means that it is a kind of utilization of capital reduction. Clear? आगे बढ़ते हैं.
look at here. The next adjustment is creditors waive their 40% ड्यू। अब यहां पे कुछ नया एडजस्टमेंट आया। किसका एडजस्टमेंट आया? क्रेडिटर्स का। ये एडजस्टमेंट में क्या दे के रखा है? जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे पास? क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू रुपीज 65,000। सो टोटल क्रेडिटर्स जो 65,000 है उसमें से रिडक्शन कितना हो रहा है? कैपिटल रिडक्शन, इट मींस इट इज वेव्ड अमाउंट। वेव ऑफ जो होगा, कितना वेव ऑफ हो रहा है? 40% ड्यू। सो 40% ऑफ 65,000 40%, that comes to 26,000. So this 26,000 is reduction of creditors and remaining is new balance of creditors for new balance sheet. Clear? देखो यहाँ पे कितना हो रहा है हमारे पास? So this is 39,000 is the new balance of creditors for new balance. जब हम revised balance sheet डालेंगे, जब हम रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे तब हमें ये लिखना है। यहां पे हमारे पास क्रेडिटर्स में रिडक्शन कितना है? 26,000। सो हियर क्रेडिटर्स 26,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वाज इन एरियर्स फॉर लास्ट 2 years, which against every ₹100 dividend, 1 equity share of ₹10 is issued. अभी यहां पे एडजस्टमेंट क्या आया? एडजस्टमेंट आया प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड का जो एडजस्टमेंट है उसमें हमारे पास क्या दे के रखा है? पहले तो 2 साल का एरियर्स है, तो हमारे पास कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 each। सो 1 lakh कैपिटल on 1 lakh rate of interest is 10% for 2 years. Clear? So that comes to 20,000. That comes to 20,000। 1 लाख कैपिटल है, उसमें 10% पे अगर हम 2 साल का कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आ रहा है? 20,000। अब प्रेफरेंस डिविडेंड हम जो पे कर रहे हैं उसकी इफेक्ट देनी है, तो पे कितना कर रहे हैं वो हमें दिया है। देखो 100 रुपए के सामने हम 10 रुपए का एक शेयर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? सो फॉर 100 रुपीज 10 रुपीज इज गिवन। 100 रुपए के सामने हम 10 रुपए दे रहे हैं। सो फॉर 20,000 हाउ मच? सो दिस कम्स टू 2,000 रुपीज। क्लियर? 2,000 रुपीज इज टू बी पेड फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड। अभी 2,000 है, शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, तो 2,000 शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू कितनी हो रही है हमारी? 90 रुपए कम हो गए, 10 रुपए है। सो 2,000 दैट इज 200 शेयर्स ऑफ ₹10 each। समझ में आ रहा है? 100 रुपए का जो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा उसके सामने हम 10 रुपए दे रहे हैं। 100 रुपए के सामने 10 रुपए दे रहे हैं, तो 20,000 के लिए हम कितना पे करेंगे? 2,000। और इस 2,000 के लिए हम इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, तो इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए है। सो 200 शेयर्स ऑफ ₹10 each। क्लियर? अभी ये जो इफेक्ट है ये कहां पे आएगी? 2000 वाली इफेक्ट हम यहां पे जब यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तब। क्लियर? मूविंग फर्दर, द डिविडेंड, ओके डिविडेंड हो गया। All intangible assets, and so here we can use all intangible assets and losses are written off. Other assets should be shown in book at their market value. So adjustment number 7 हम डायरेक्ट करेंगे। Adjustment number 8, one debtor of ₹5,000 became insolvent and nothing was recovered from him. Provide 10% bad debt reserve on डेटर्स। अभी ये जो एडजस्टमेंट है इसका कैलकुलेशन हम यहां पे करेंगे डेटर्स का, पर वो सबसे लास्ट में करते हैं। तब तक यहां पे हमारे पास कुछ है, सो दैट इज क्रेडिटर्स, और उसके साथ में हम यूज कर लेंगे यहां पे हमारा जनरल रिजर्व। जो फ्री रिजर्व्स है वो हम कैपिटल रिडक्शन में
यूज कर लेंगे। सो हमारे पास फ्री रिजर्व है 20,000। क्लियर? और यहां पे क्या आ रहा है, कंप्लीट हो रहा है, पर फिर भी अगर असेट में रिडक्शन होता है तो वो हम कहां पे लिखेंगे, यूटिलाइजेशन। अगर असेट्स में कुछ रिडक्शन होता है तो हम यूटिलाइजेशन में लिखेंगे, अगर असेट्स में कुछ इंक्रीज होता है तो हम कहां पे लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन में। ठीक है, देखो यूटिलाइजेशन जब हम कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हुआ है उसकी हम पहले इफेक्ट डालेंगे। तो सबसे पहले बैंक लोन, उसका हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो हियर बैंक लोन that is interest on bank loan amounted to rupees 2,500. So this is done. Second, creditors waiver of amount, so we have written here. Preference dividend हम पे कर रहे हैं 2,000 रुपए, so here preference dividend 2,000. क्लियर? तो ये जो हमारा एडजस्टमेंट 1 2 3 4 5 और एडजस्टमेंट नंबर 6 है, वहां तक हमने इफेक्ट डाल दिए यहां पे। ठीक है, अब देखो ऑल इंटेंजिबल एसेट्स एंड लॉसेस आर रिटन ऑफ। ऑल इंटेंजिबल एसेट, तो इंटेंजिबल एसेट्स में हमारे पास क्या है, एक तो गुडविल है और पेटेंट है, तो उसको राइट ऑफ करिए। सो हियर गुडविल एंड पेटेंट। गुडविल अमाउंटेड टू रुपीज 40,000 एंड पेटेंट अमाउंटेड टू रुपीज 10,000। उसके साथ में अदर एसेट्स should be shown in the books at their market value। अभी देखो मार्केट वैल्यू के लिए हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज थी। ठीक है, मार्केट वैल्यू हमें ब्रैकेट में दे रखी है। लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू कितनी थी, 2 लाख। बुक वैल्यू कितनी है, 80,000। बुक वैल्यू कितनी है, 80,000। तो उसमें इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, 2 लाख मार्केट वैल्यू है, बुक वैल्यू 80,000, तो 1,20,000 कम हो रहा है, नहीं 1,20,000 बढ़ रहा है। मार्केट वैल्यू 80,000 थे, अब मार्केट वैल्यू कितनी हुई, 2 लाख, तो इंक्रीज कितना हुआ, 1,20,000। सो दैट इज कैपिटल रिडक्शन। हियर लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। क्लियर डियर स्टूडेंट? सो दिस इज व्हाट इंक्रीज हो रहा है। अगर असेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो हम कैपिटल रिडक्शन में लिखेंगे, असेट्स रियल असेट्स में डिक्रीज हो रहा है तो हम यहां पे यूटिलाइजेशन। उसके साथ ही हमें एक जो मशीनरी है उसकी मार्केट वैल्यू भी देके रखिए। मार्केट वैल्यू कितनी है, 50,000 और उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 70,000। सो मशीनरी में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सो दैट इज मशीनरी हियर अमाउंटेड टू रुपीज 20,000 रिड्यूस्ड। क्लियर? सो ये 20,000 कम हो रहे हैं, तो दैट इज यूटिलाइजेशन। मूविंग फर्दर, सो वी हैव एनी अनदर fictitious assets are there? Yes, profit and loss account is there, 2,30,000. So we have to write our profit and loss account in bracket. The debit balance amounted to rupees 2,30,000. यहां तक जो है वो ठीक है, हम पहले भी कर चुके हैं। अब हमारा एक नया एडजस्टमेंट आ रहा है। नया एडजस्टमेंट क्या है, डेटर्स का एडजस्टमेंट है, वो हमारे पास नया एडजस्टमेंट है। देखो हम उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं पहले। सो हियर कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स। तो अब जब हम डेटर्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं डेटर्स के लिए, तो डेटर्स की हमारे पास वैल्यू कितनी है, हाउ मच अमाउंट इज देयर फॉर डेटर्स, वी हैव 80,000। पुराना जो बैड डेट रिजर्व है उसको निकाल दीजिए, तो 80,000 है माइनस इंसॉल्वेंट डेटर्स 5,000। उनके पास से कुछ नहीं मिलने वाला है, कितना बचा है 75,000। अब 75,000 पे हमें 10% बैड डेट रिजर्व क्रिएट करना है, सो दैट कम्स टू 7,500। सो न्यू बैलेंस हमें कितनी मिल रही है बैलेंस शीट के लिए, 67,500। दिस इज न्यू बैलेंस ऑफ डेटर्स टू बी ट्रांसफर्ड टू न्यू बैलेंस शीट। क्लियर? तो यहां पे इफेक्ट हम क्या डालेंगे, आप सोच रहे होगे कि यहां पे देखो 80,000 है और यहां पे 67,500 पर
बैड डेप्ट रिजर्व का अगर हम देखेंगे, बैड डेप्ट रिजर्व, तो ओल्ड रिजर्व के लिए देखो हमारे पास ओल्ड रिजर्व कितना है, ओल्ड रिजर्व हमारे पास था 4000, और ओल्ड बैड डेप्ट जो है, बैड डेप्ट कितना हुआ, बैड डेप्ट हुआ हमारे पास 5000 का, एक जो डेटर्स था 5000 वाले उसके पास कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहां पे डेटर्स में रिडक्शन कितना हुआ, ये रिडक्शन शोज कितना हुआ 1000, मतलब यहां पे 1000 डेटर्स कम हुआ, यहां पे 7500 डेटर्स कम हुआ, तो टोटल बैड डेप्ट रिजर्व, टोटल बैड डेप्ट रिजर्व कितना आया 8500, क्लियर, टोटल कितना आया 8500, so that is a reduction in debtors. So let's write here debtors, how much it is 8500, क्लियर। फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे डेटर्स कितने थे हमारे पास, पहले 80000, उसमें से बैड डेप्ट रिजर्व 4000, पुराना वाला बात करके हमने 76000 देके रखा था, पर अब 76 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, टोटल लेंगे, उसमें से एक्चुअल बैड डेप्ट जो है ये डिडक्ट करेंगे, तो हमारे पास कितना बचा है, इनके पास से हम रिकवर कर सकते हैं 75000, सो आउट ऑफ दैट 75000 10% इज bad debt reserve, and out of that if we deduct this bad debt reserve from debtors we'll get the new balance, और ये हमारे पास है रिडक्शन। पुराना वाला जो रिडक्शन है हमारे डेटर्स में वो 1000 मिला, और नया वाला जो है वो 7500, तो टोटल बैड डेप्ट रिजर्व का रिडक्शन कितना हो रहा है 8500, clear up to this? So this is what total utilization, this is total capital reduction amount. So total capital reduction amount that comes to 1,80,000 plus 80,000 plus 15,000 plus 26,000 plus 20,000 plus 1,20,000. That comes to 4,41,000. 4,41,000, and here we have 2,500 plus 2,000 plus 40,000 plus 10,000 plus 20,000 plus 2,30,000 plus 8,500. So we are here we have 3,30,000. So difference of this, difference यहां पे लिख लेते हैं, डिफरेंस हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। कितना डिफरेंस आएगा, ये जो है ये 4,41,000 माइनस 3,13,000, तो हमारे पास आएगा 4,41,000 माइनस 3,13,000 इज इक्वल टू 1,28,000। ये हम 1,28,000 है वो कहां पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है, ये हम कहां पे ट्रांसफर करने वाले हैं, कैपिटल रिजर्व में। डन स्टूडेंट, सो दिस टू आर न्यू पॉइंट हियर, ये दो जो है वो नए पॉइंट हैं, ये तो प्रेफरेंस डिविडेंड के जैसे ही, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप हियर, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्री के बाद में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो कैपिटल रिडक्शन अमाउंट यहां पे नहीं हम बनाने वाले नहीं है, वो आपको घर पे करना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो कि सर ये जो टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा है, आप फिर से एक बार समझाओ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स, ऑल दी क्वेश्चंस जो भी आपके रहेंगे उसके हम सॉल्यूशन करेंगे। और एक बात और, इससे इसको बड़ी अच्छे से समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आगे वाले जो सेशंस है वो देखने पड़ेगा, क्लियर, ओके। सो लेट्स pass the necessary journal entries for capital reduction scheme, then ओके journal entries दे रहे, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, we'll start from capital reduction. So the first journal entry is reduction of capital. So for reducing share capital, for reducing share capital, तो कौन कौन से शेयर कैपिटल में रिडक्शन हो रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो हियर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
debited preference share capital account debited to capital reduction account, to capital reduction account. तो अभी यहाँ हमारे पास यहाँ 1,80,000 for equity share capital, 80,000 for preference share capital, so total capital reduction here 2,60,000. Clear? This is first entry. Second, outstanding debenture interest, outstanding debenture interest, और उसके साथ में क्या हो रहा है हमारा, क्रेडिटर्स भी कुछ कम हो रहा है, रिजर्व भी कुछ कम हो रहा है. तो सेकेंड एंट्री फॉर reducing reserves, for reducing reserves. तो reserves में क्या रिडक्शन हो रहा है, जनरल रिजर्व एक ही है, सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. जनरल रिजर्व कितना है हमारे पास, 20,000. क्लियर? Moving further, debenture holder and creditors waived some amount. So for that, entry number 3 for debenture holders and creditors waived their amount. Waived their amount. So what is the entry for that? Creditors account debited outstanding debenture interest account debited to capital reduction account, to capital reduction account. So how much creditors is 26,000, outstanding debenture interest that is 15,000, and capital reduction that is 41,000. Clear? 41,000. Clear up to this, dear student? Moving further, this land and building, this is appreciation in asset. So here for appreciation in asset, for appreciation in asset, what is the entry? Land and building account debited to capital reduction. So here land and building account debited to capital reduction account. How much it is? 1,20,000. 1,20,000. So these 4 entries are for capital reduction. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. बैंक लोन. सो बैंक लोन के लिए 2 एंट्री, प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए 2 एंट्री. अगर आप 2 एंट्री डालना नहीं चाह रहे तो 1 एंट्री भी दे सकते हो. ठीक है, तो पहले हम यूटिलाइजेशन की फुल एंट्री देंगे, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड की दूसरी इफेक्ट, बैंक लोन की दूसरी इफेक्ट, बैंक लोन इंटरेस्ट की दूसरी. ठीक है, सो लेट्स डू इट फॉर यूटिलाइजेशन. सो फॉर यूटिलाइजेशन, ओके, यहां पे हम पहले हाँ फॉर यूटिलाइजेशन नहीं, यूटिलाइजेशन का हमारे पास ज्यादा थोड़ी जगह चाहिए. सो ओके, बैंक लोन के लिए हम क्या दे रहे, बैंक लोन के लिए क्या दे रहे, इक्विटी शेयर्स दे रहे. ठीक है, तो फॉर शेयर्स इश्यूड टू लोन, टू बैंक लोन. So what is the entry for this? Bank loan account debited, bank loan account debited to equity share capital account. कितने की लोन के लिए हम कितने शेयर्स दे रहे हैं? 5,000 shares of rupees 10 each. So here 50,000 and 50,000. ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं. अभी क्या है हमारे पास? यूटिलाइजेशन. सो फॉर यूटिलाइजेशन, फॉर यूटिलाइजेशन
What is the entry? Capital reduction account debited to all this component. To all this component. Clear? So let's write it here. To interest on bank loan account. To preference dividend account. To goodwill account. To patents account. To machinery account. To profit and loss account. And लास्ट में हमारे पास है to debtors account. Clear? So capital reduction debited, that is 3,13,000. In that we have interest on loan amounted to rupees 2,500. Preference dividend we have 2,000. Goodwill 40,000. Patents 10,000. Machinery 20,000. Profit and loss 2,30,000 and debtors 8,500. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. ये हो गया हमारा. अभी हम दो इफेक्ट जो बैंक लोन का इंटरेस्ट है और डिविडेंड है. इंटरेस्ट के लिए हम क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट के लिए हम क्या दे रहे हैं? देखो इंटरेस्ट को छोड़ दो. हाँ, इंटरेस्ट के लिए हम क्या, इंटरेस्ट का पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं? कैश में कर रहे हैं. सो फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे करेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. टू कितना पे कर रहे हैं हम? 2,500. 2,500. सो इंटरेस्ट के लिए हमने दूसरे इफेक्ट डाल दिए. अब हमारे पास है प्रेफरेंस डिविडेंड. सो फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड, अब डिविडेंड के सामने हम क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं. तो प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू क्या आएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कितने शेयर्स इश्यू कर रहे हैं हम? 2,000 के शेयर्स इश्यू कर रहे हैं. सो 2,000. एंड द लास्ट एंट्री इज transfer of remaining balance to capital reserve. So for transfer, what is the entry? Capital reduction account debited to capital reserve. So here capital reduction account debited to capital reserve. ठीक है? कितना ट्रांसफर कर रहे हैं हम? 1,28,000. 1,28,000. डन. अब आपको क्या करना है? ये जर्नल एंट्री फिर से एक बार आपकी नोटबुक में लिखना है, समझना है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इन योर बुक. और आपका जो भी टोटल आ रहा है, ठीक है, और बैलेंस शीट. क्लियर? तो बैलेंस शीट आपको करना क्या है? बैलेंस शीट आपके घर पे भी करना है. इस एग्जांपल को यहीं पे पॉज करें और बैलेंस शीट अपने आप तैयार करें, फिर यहां पे देखिए. ठीक है? ओके. तो आप पहले बैलेंस शीट बनाओ, फिर हम यहां पे तैयार करते हैं. तो चलो अब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं. सो दिस इज a balance sheet of Tara Company Limited. This is format of balance sheet. We have sources of fund and application of fund. In sources of fund, it means on liability side we have share capital, reserves and surplus, secured loans and long-term liabilities, current liabilities and provisions. And on the asset side we have fixed assets, investment and current asset. Clear? Now we will give the effect of all this scheme of capital reduction into balance sheet. Clear? So in share capital, first is equity share
कैपिटल। अभी देखो इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए हमारे पास पहले 2000 शेयर्स थे प्रीवियसली, प्लस 5000 शेयर्स हम किसके लिए दे रहे हैं, लोन के लिए दे रहे हैं, और 200 शेयर्स हम प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए दे रहे हैं। क्या रहे, प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए हम 200 शेयर्स दे रहे हैं। तो 2000 अर्ली शेयर्स प्लस 5000 शेयर्स given to bank loan and 200 shares issued for preference dividend. So here 7200 shares at rupees 10 each, at rupees 10 each. Clear? So this is 7 lakhs 20,000. Sorry, it is 72,000. 7,200 multiplied with 2, so 72,000. Preference shares, preference share capital. How many shares? 1,000 shares of rupees 20 each. So here 20,000. Clear? Moving further, in reserves and surplus we have capital reserve. So here capital reserve amounted to rupees 1,28,000. In secured loans and long-term liabilities we have 15% debentures. Debenture માં કોઈ પણ પ્રકારનું ચેન્જ નથી. So 15% debentures amounted to rupees 1 lakh. And in current liabilities previously we have bank loan, creditors and outstanding debenture interest. तो outstanding debenture interest हम पे कर चुके हैं, बैंक लोन के लिए हम इक्विटी शेयर्स दे चुके हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कितना बच रहा है, क्रेडिटर्स, और वो भी कितने, ओनली 39,000, ओनली 39,000। जब हमने स्टेप जो एडजस्टमेंट्स किए थे तब हमने ये कैलकुलेट किया था। क्लियर? सो दिस इज व्हाट टोटल ऑफ ए, टोटल हम बाद में करने वाले हैं, ठीक है। कम टू एप्लीकेशन ऑफ फंड। इन एप्लीकेशन प्रीवियसली वी हैव गुडविल, patents, but goodwill and patents have been written off here, and so now we have land and building and machinery, but in the adjustment we were given that in new book market value is to be considered. So here in fixed asset we have land and building and machinery. So the new value of land and building was given 2 lakh. The market value of machinery is given at 50,000. Clear? Moving further, investment 0, and in current assets we have stock, debtors and कैश एंड बैंक बैलेंस। अभी कैश एंड बैंक के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट में कर रहे हैं। हमारी बैलेंस कितनी दे के रखा है, 14,000 है प्रीवियसली, ठीक है, और 14,000 में से हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कितना, 2,500। सो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 11,500 फॉर कैश एंड बैंक। डेटर्स के लिए हमने कैलकुलेट किया था 67,500, और स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, दैट इज 30,000, सेम एज प्रीवियस बैलेंस। क्लियर? सो दिस इज सिंपली अ बैलेंस शीट। अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से कर रहे हो, जर्नल एंट्रीज अच्छे से कर रहे हो, तो बैलेंस शीट बनाने में ज्यादा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सो लेट्स मेक द टोटल हियर, बी total. Clear? So let's do the total here. 72,000 plus 20,000 plus 1,28,000 plus 1 lakh plus 39,000, that comes to 3,59,000. Here also 3,59,000. You can make this total in your calculator also. Clear? So this is the practical example of capital reduction. एकदम इजी चैप्टर है, ध्यान से समझना है, पहले थियरी समझनी है। जो भी मैंने इससे पहले भी आपको बोला है कि पहले आप आगे वाले सेशंस देखो, तब आपको ये बड़ी अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, आज हम एक और एग्जाम्पल Let's solve one more practical example of capital reduction. My dear student, this is sixth practical example of capital reduction chapter. And in this example, we will cover almost all the points. जो भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो सभी पॉइंट हम इस एग्जाम्पल में कवर कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स रीड द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. Following is the balance sheet of Krishna Company Limited as on 31st March 2020. एक बैलेंस शीट दे के रखी है. On the liabilities side, that is sources of fund, we have share capital, 10,000 equity shares of rupees 100 each, 50,000 6% preference shares of rupees 10 each. Reserves and surplus nil. Secured loans and long-term liabilities, in that we have debentures, and in current liabilities and provisions we have creditors and outstanding debenture interest. Total is 20 lakh. This is liability side. On the asset side, that is application of fund, we have fixed asset. In fixed asset we have goodwill, patent. See, these two are intangible assets. Along with that we have land and building, plant and machinery, furniture and fittings. Investment rupees 1 lakh, and current assets, loans and advances, in that we have stock, debtors and bank balance. Preliminary expenses 15,000 and profit and loss account debt balance 2 lakh. So preliminary expenses and profit and loss account are kind of fictitious assets. Total 20 lakhs. So this is a balance sheet of Krishna Company Limited. With the help of the adjustments, we have to give effect of capital reduction scheme. So the company has passed the following scheme of capital reduction, which is approved and sanctioned by the court. Look at the terms and conditions of capital reduction. The value of equity shares to be reduced 2 rupees 40 per share. So 2 rupees 40 per share. So it means that we have reduction of rupees 60 per share in equity shares. Preference shares are to be reduced 2 rupees 6 per share. अभी यहाँ पे 6 रुपए तक, तो प्रेफरेंस शेयर में कितना रिडक्शन है? 4 rupees per share. Debenture holders waive their outstanding interest. बहुत सारे एग्जांपल्स है, पिछले ऑलमोस्ट इन ऑल द एग्जांपल्स हमने ये एडजस्टमेंट किया हुआ है. द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू वेव देयर एरियर्स ऑफ डिविडेंड एंड रुपीज 20,000 टू बी पेड इन देम इन ल्यू ऑफ देयर ऑफ. अभी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो डिविडेंड नहीं लेना चाहते, मतलब वेव कर रहे हैं, और 20,000 उनको पे करना है. कैसे पे करना है? कैश. गुडविल, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी राइट ऑफ, ये भी हमने पहले किया हुआ है. नंबर 6, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स. अभी हमें नया बैड डेब्ट क्रिएट करना है, कितना है? 5%, दैट इज ऑन डेटर्स. द बैलेंस अवेलेबल टू यूटिलाइज फॉर राइटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एज अंडर. अभी जो एसेट्स है उसमें रिडक्शन कितना हो रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, पेटेंट्स रुपीज 1,50,000, फर्नीचर रुपीज 20,000 एंड स्टॉक रुपीज 50,000. तो ये जो एग्जांपल, ये एकदम इजी एग्जांपल है. ठीक है, इस टाइप का एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन पास necessary journal entries and prepare revised balance sheet after implementing the scheme of capital reduction. तो ये क्या देके रखा है हमें? and also prepare capital reduction account, वो तो हम बनाने वाले ही हैं. तो ये एग्जांपल में क्या है हमारे पास? एक नॉर्मल बैलेंस शीट है और कुछ एडजस्टमेंट है. ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट वी आर आस्क्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट. Clear, dear student?
So let's do the solution of this example. So what is given in this example? This is second example of today's session. क्या दे के रखा है? फिर से एक बार हम एग्जांपल पहले हम समझ चुके हैं, अब फिर से एग्जांपल के एडजस्टमेंट्स लेते जाएंगे और उसका सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो देखिए एक बैलेंस शीट दे के रखी है कृष्णा कंपनी लिमिटेड की, और एडजस्टमेंट नंबर 1 इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड 2 रुपीस 40 पर शेयर। मतलब कैलकुलेशन हम कर रहे हैं here capital reduction, तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले क्या देके रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना रिडक्शन देके रखा है 40 रुपीस तक। इट मींस दैट वी हैव रिडक्शन ऑफ रुपीस 60 इन इक्विटी शेयर कैपिटल। सो हियर इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर्स थे पहले हमारे पास 10,000 शेयर्स, उसमें 60 रुपीस का रिडक्शन हो रहा है। सो हियर 6 lakhs। क्लियर? एडजस्टमेंट नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड 2 रुपीस 6 पर। अभी प्रेफरेंस शेयर में 6 रुपए तक रिड्यूस करना है, तो अगर 6 रुपए तक रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास रिडक्शन कितना आएगा 4 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर कितने शेयर्स थे 50,000। सो हियर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाउ मेनी शेयर्स were there 50,000 shares of rupees 4 each. So here we have 2 lakh. Clear? Moving further, debenture holders waive their outstanding interest। अभी outstanding interest कितना है 20,000। So here outstanding debenture interest 20,000। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू वेव देयर एरियर्स ऑफ डिविडेंड एंड रुपीस 20,000 टू बी पेड टू देम इन ल्यू देयरऑफ। मतलब जो प्रेफरेंस डिविडेंड है उसको हम कितना पे कर रहे हैं 20,000। वो कैसे कर रहे हैं कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो पिछली बार जो एग्जांपल हमने किए थे उसमें क्या था लोन का पेमेंट था कैश में से, यहां पे किसका पेमेंट देके रखा है हमें प्रेफरेंस डिविडेंड का कितना 20,000। तो जब हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे एट दैट टाइम वो कैश एंड बैंक जो बैलेंस हमारी ओपनिंग है उसमें से हम 20,000 डिडक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां पे। सो फर्स्ट स्टेप इज डन। वी हैव सेकंड स्टेप एज यूटिलाइजेशन। सो इन यूटिलाइजेशन लेट्स डू इट। फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस डिविडेंड। सो हियर प्रेफरेंस डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं हम 20,000 पे कर रहे हैं। क्लियर? एडजस्टमेंट नंबर 5, गुडविल, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी रिटन ऑफ। ठीक है, क्लियर कट देख के रखा है। क्या क्या राइट ऑफ करना है, एक तो गुडविल को राइट ऑफ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करना है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है। तो अभी हमारे पास गुडविल कितने राइट ऑफ करने के लिए अवेलेबल है 90,000, प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 15,000। ठीक है, आगे बढ़ते नंबर 6, प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व टू बी मेड एट 5% on debtors. So here we can write here debtors in bracket bad debt reserve amounted to rupees how much? So that is 5,000. 5% comes to 5,000. And last adjustment, the balance available to utilize for writing down the values of asset as under. अभी assets में कुछ reduction दे के रखा है। क्या क्या है हमारे पास? Land and building है, plant and machinery, patents, furniture and store. So here land and building, then land and building 1 lakh rupees reduction, plant and machinery also 1 lakh reduction, then we have patents
reduction of rupees 1,50,000. Then we have furniture amounted to rupees 20,000, and the last is stove amounted to rupees 50,000. Clear? So this is utilization, this is reduction. A, B. Total of A is 8,20,000. Total of utilization that comes to rupees 7,50,000. डन? थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं हम, पर कोई दिक्कत नहीं है, ये इसी टाइप का एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं, और यहां पे हम सिर्फ कैलकुलेशन करके डायरेक्ट बैलेंस शीट तैयार करने वाले हैं, कोई जर्नल एंट्री करने वाले नहीं है। जर्नल एंट्री आपको करनी, यू हैव टू राइट द जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो A minus B is equal to transfer to capital reserve. So here difference to capital reserve, difference to capital reserve. अभी difference कितना आएगा? 8,20,000 minus 7,50,000, that comes to how much? It is 70,000. तो ये जो 70,000 है वो हम कहां पे ट्रांसफर करने वाले हैं? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है यहां तक? ओके, अब यहां पे हम क्लोजिंग कैश बैलेंस ढूंढ ही लेते हैं, क्लोजिंग बैंक बैलेंस, बैलेंस शीट बनाने के लिए। ओपनिंग बैलेंस कितना दे के रखा था हमें? ओपनिंग हमें दे के रखा था 25,000, उसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं? 20,000. सो हाउ मच लेफ्ट? दैट इज 5,000. हम कहां पे लिखेंगे इसको? न्यू बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में। क्लियर? सो अब यहां पे हमको जर्नल एंट्रीज डालनी है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. सो फर्स्ट एंट्री फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल reduction. Second entry, debenture holder waives their interest, so outstanding debenture interest account debited to capital reduction account. And then for utilization, so for utilization, what is the journal entry? Capital reduction account debited to all this component, above the component आपने credit करें. Clear? Here we have to give one more journal entry of payment of preference dividend. So what is that journal entry? Preference dividend account debited to cash or bank account. ठीक है? और उसके बाद में हम ट्रांसफर डालेंगे, कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो वो एंट्री कैसे रहेगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व. क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस you have to pass, that is for your work, you have to pass journal entries, you have to prepare capital reduction account. Done? So that is your work. So let's prepare balance sheet here. अब हम क्या करने वाले हैं? ये जो हमने कैलकुलेशन किया है, on the basis of this calculation, let's prepare a revised balance sheet directly. तो आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर है वो कितना इजी है, ठीक है? तो चलिए बैलेंस शीट करते हैं, पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मेट है बैलेंस शीट ऑफ कृष्णा कंपनी लिमिटेड एज ऑन 1/4/2020 आफ्टर कैपिटल रिडक्शन स्कीम, ठीक है? तो पुरानी बैलेंस शीट में हमें क्या देके रखा था? 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब इक्विटी शेयर में कितना रिडक्शन हो रहा है? 60 रुपीस. सो हियर इक्विटी शेयर कैपिटल, how much? 10,000 shares at ₹40 each. पहले 60 रुपए थे, अब कितने हो गए? 40. So here 4 lakhs. Clear? Now in old balance sheet we have 50,000 preference shares of ₹10 each. Here preference share capital 50,000 shares
एट ₹6 ईच, 4 रुपए का रिडक्शन हो रखा है तो 6 रुपए बचे, दैट कम्स टू 3 lakhs। क्लियर? आगे हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस, पहले कुछ नहीं था, अब यहां पे हमारे पास है कैपिटल रिजर्व, कितना आ रहा है 70,000 जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, मूविंग फर्दर, इन सिक्योर्ड लोन्स वी हैव डिबेंचर्स, डिबेंचर में कोई चेंज नहीं है, सो हियर डिबेंचर्स अमाउंटेड टू ₹3 lakhs। और लास्ट में करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में हमारे पास पहले था क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, उसमें से आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट हम लोगों ने पे कर चुके हैं, मतलब वे ऑफ हो रहा है, तो यहां पे कितना बचा, सिर्फ क्रेडिटर्स, और उसमें कोई चेंज नहीं है, सो क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹1,80,000। दिस इज टोटल ऑफ ए। क्लियर? आगे बढ़ते, ऑन एप्लीकेशन ऑफ फंड प्रीवियसली वी हैव गुडविल, गुडविल कितनी थी 90,000 फुल्ली रिटन ऑफ। पेटेंट पहले कितने थे 2,80,000, पहले कितने थे हमारे पास 2,80,000 माइनस पेटेंट में रिडक्शन कितना हो रहा है 1,50,000, सो वी हैव 1,30,000 एज अ patent, so here patents 1,30,000। क्लियर? उसके बाद में हमारे पास आता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्रीवियस हमारे पास बैलेंस थी 5 लाख माइनस रिडक्शन हो रहा है 1 लाख का, कितना बचा 4 लाख, सो हियर लैंड एंड बिल्डिंग 4 lakhs। उसके बाद में हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी, ओल्ड वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 4 लाख, आउट ऑफ दैट रिडक्शन ऑफ ₹1 लाख, सो न्यू बैलेंस 3 lakhs। क्लियर? मूविंग फर्दर, वी हैव फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इन फर्नीचर वी हैव रिडक्शन ऑफ ₹20,000, so out of 40,000 minus 20,000, so here furniture कितना बैलेंस आ रहा है हमारे पास, पहले 40,000 था उसमें से 20,000 रिड्यूस हुआ तो अब कितना बचा 20,000। क्लियर? इन्वेस्टमेंट, फॉर इन्वेस्टमेंट नो चेंज, प्रीवियसली वी हैव 1 लाख, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इन करंट असेट्स वी हैव स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, so preliminary expenses and profit and loss has been written off, so 3 component left, which are that 3 component, stock, debtors and bank balance। so stock हमारे पास old value 2,50,000 minus 50,000, so we have a new balance of ₹2 lakh। Old debtors 1 lakh minus 5% bad debt reserve 5,000, so that comes to 95,000, and closing cash balance that we had calculated at ₹5,000, so this is total of B, this is a balance sheet। ठीक है, now let's do the total here, 4 lakh plus 3 lakh plus 70,000 plus 3 lakh plus 1,80,000, that comes to 12,50,000। another side 1,30,000 plus 4 lakh plus 3 lakh plus 20,000 plus 1 lakh plus 2 lakh plus 95,000 plus 5,000, that comes to 12,50,000। Clear, dear student? In this example, what I have done,
I have done calculation and balance sheet. For your work, you have journal entries and capital reduction account. Clear? So this is how we can solve the practical of capital reduction with a very easy method. And for that, what I have told in the previous session, to remember the steps. Clear, dear student? So if you really like this, kindly share and subscribe the channel, so that all the students of commerce can get the benefit of this particular chapter, as well as the solution, how we can solve the practical example of capital reduction chapter. Done? Okay. Thank you very much. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.